Save water, every drop counts. Good morning children. A very fresh morning to all. So welcome to EVS class. I hope you are all safe and good at your home. So today I am going to start new chapter 11, water. So how much chapters in PA2? There are 3 chapters in PA2. Okay? Which are they? 9, rocks and minerals. Chapter 10, air around us. And chapter 11, water. Okay? So I am going to quick recap to all chapters. Okay? Those who have completed chapters. So first we have completed chapter 9, rocks and minerals. So in this chapter we learned about rocks, about hard rocks, about soft rocks, and we learned about some minerals. Okay? So in 10th chapter we learned about air, moving air, what does air contain, properties of air, keeping the air fresh and clean. How wind helps us? So wind helps us in many ways. Okay? So we learned properties of air and what air contains. Okay? So from tomorrow I am going to start new chapter, water. Okay? You know children, we all need air, water and food to live and grow. Okay? So all living things need water. So water is very important for us. So we should not waste water. Okay? So which activities do with help of water? Okay? So we take a bath with water, we brush our teeth with water, and plants need water, and for drinking, for washing clothes, for washing utensils, for washing house, washing cars. Okay? So सबके लिए water is very important. Okay? So you all know where do we get water? Yes. So in this chapter we are going to learn how do we get water and where do we get water at home. Okay. So sources of water, storage of water, drinking water and saving water. So in this chapter we are going to learn sources of water, storage of water, drinking water and saving water. Okay, so today we are going to start from activity. These are activities. Okay. So we use water for many purposes. Which are they? For bathing, for drinking, for washing utensils. Okay. So observe some activities for which you use water at home. Then measure and write how much water you use for the following in a single day. मतलब ये हमें पूछा गया है हम सिंगल डे में कितना लीटर वाटर यूज़ करते हैं. आपने मैथ्स में सीखा होगा हम वाटर लीटर में मापा जाता है. ओके, सो वाटर किस पे मापा जाता है? लीटर्स में. ओके, सो हाउ मेनी बकेट्स फॉर बाथिंग, ये आपको खुद करना है. दिस इज टुडेज होमवर्क. Okay, I don't know how much water you are taking to take a bath. Okay, so you have to write this. Okay, so ये आपको ही लिखना है. ये मैं नहीं बता सकती आप कितना वाटर यूज़ करते हो. So how many buckets for bathing? आप bathing के लिए कितना buckets यूज़ करते हो यहाँ पे लिखना है. If you are using 2 buckets, then you have to write here 2. If you are using only 1 bucket, so you have to write here 1 bucket. Clear? So next,
हाउ मेनी मग्स फॉर ब्रशिंग? ओके, मोर देन 2 मग्स इज इनफ, है ना, मुझे तो 2 मग्स इनफ होते हैं ब्रशिंग करने के लिए। ओके, सो हाउ मेनी मग्स फॉर ब्रशिंग, तो आप कितने मग्स यूज़ करते हैं? अगर आप डायरेक्ट टैप से यूज़ करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितने मग्स यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2, 3, 4 मग्स आप लिख सकते हो, राइट यूर सेल्फ। ओके, ये मैं नहीं लिख सकती। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक? ओके, यहाँ तो मिनिमम आपको 9 ग्लासेस तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 to 9 ग्लासेस हमें वाटर पीना ही है डेली। ओके, आवर बॉडी नीड्स वाटर टू रिमेन हेल्दी, है ना, वी शुड ड्रिंक वाटर। ओके, सो नेक्स्ट, हाउ मेनी कैन्स फॉर वाटरिंग द प्लांट्स? आप प्लांट्स के लिए कितना वाटर देते हैं, यहाँ पे आपको खुद लिखना है। ओके, सो ये सारा आपको खुद लिखना है। ओके, these activities write yourself only. Okay, so do you think any living thing can live without water? Is it right, children? Do you think any living thing can live without water? No, we cannot live without water. Now, no us and no animals, no humans and no plants. Okay, so every living things need water. ऐसे नहीं कि नॉन लिविंग को नहीं चाहिए, बट नॉन लिविंग्स पीते नहीं हैं। जैसे हमारा कार वॉश करना, कपड़े धोना, यूटेंसिल्स धोना, दिस आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, बट उनको क्लीन करने के लिए हमें वाटर चाहिए। ओके, सो लिविंग थिंग्स को क्यों वाटर चाहिए? क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए। नॉन लिविंग्स को सिर्फ क्लीन करने के लिए हमें चाहिए। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। वाटर इज यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। Let us learn more about water and where it comes from. मैं यही बोलती हूँ कि वाटर कहाँ से आया है, और जो मैं अंडरलाइन करवाती हूँ आपको वो अंडरलाइन करवाना पड़ेगा। ओके, सोर्सेस ऑफ वाटर मतलब वाटर कहाँ जमा होता है? जब रेन आती है तब वाटर स्टोर होता है, और वो कहाँ कहाँ पे होता है हम जानेंगे। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। हमें वाटर कहाँ से मिलती है? रेन से मिलती है। The water from rain is called rainwater. Rainwater fills ponds, lakes and rivers. So जब भी हमारे यहाँ रेन होती है तो वाटर कहाँ जमा होता है? क्या रेन वाटर हम सेव कर सकते हैं पूरे साल के लिए घर में? नो, घर में हम सेव करते हैं, बट जो हमें डेली चाहिए उतना ही वाटर हम सेव करते हैं, है ना। तो पूरे साल के लिए हम सेव नहीं कर सकते हैं, तो पूरा साल हम कहाँ से यूज़ करते हैं? रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स। मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ। ओके, सो रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, यहाँ से हम वाटर हमारे घर पे आता है, बट हम ये डायरेक्टली नहीं पी सकते, इसको फिल्टर करके हम हमारे यहाँ पहुँचा जाता है, तब हम पीते हैं। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे फेमस रिवर्स है। ओके, उनका लिस्ट भी मैं आपको समझाऊंगी। ओके, सो हम कहाँ से मिलता है हमें पानी? वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। द वाटर फ्रॉम रेन इज कॉल्ड रेन वाटर। ओके, रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। ओके, इतना ठीक है। मैं अभी आपको रिवर्स के बारे में बताऊंगी। Okay, children, see this. These are rivers. This is called stream. Okay, जहाँ हमारा रेन वाटर जमा होता है, this is stream. These are rivers. पॉन्ड ये है, ये क्या है? पॉन्ड। ये इतना बड़ा नहीं रहता है, छोटा सा रहता है। यहाँ पे रेन फिल होता है। ओके, so we get water from rain. The water from rain is called rain water. Rain water fills ponds, rivers and lakes. Okay, this is lake. So rain water कहाँ कहाँ fill होता है? Lakes, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। इसे हम साल भर वाटर यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम घर में इतना वाटर जमा नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं, दिस इज़ द मैप
These are all famous rivers. Kaveri, Krishna river, Godavari river, Tapti river, Narmada river, Yamuna river, Ganga river, यहाँ पे देख सकते हो आप, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, गंगास, है ना, सतलेज, ये सब रिवर्स है हमारे इंडिया में, है ना, ये सारे रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दिस आर ऑल रिवर्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप फेमस रिवर्स, इंडस रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा. दिस आर ऑल नदीज. ओके, तो लार्जेस्ट नदियाँ हैं ये सब, जो नदियाँ रहती हैं ये बहुत बड़े रहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि हम रेन वाटर और कहाँ कहाँ फिल करते हैं. ओके ओके, हमने देखा कितने फेमस नदियाँ हैं हमारे इंडिया में. समटाइम्स वी बिल्ड डैम्स एंड कैनाल्स टू यूज़ रिवर वाटर. को रिवर वाटर कहाँ जमा करते हैं? एक कैनाल है, कैनाल और एक डैम है. ओके, सो कैनाल और डैम में भी रिवर्स फिल करते हैं हम लोग. ये हम ह्यूमंस ने बनाया. ओके, दिस इज़ नॉट नेचुरल. रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, दीज आर ऑल नेचुरल, है ना, बट दीज आर ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक कैनाल और डैम, कैनाल और डैम. Okay, sometimes we build dams and canals to use river water. Some rainwater also seeps into the ground and is known as groundwater. Okay, some rainwater seeps into underground. जो हमारे धरती के अंदर कुछ वाटर स्टोर हो जाते हैं जब भी बारिश आती है तो रिवर फुल हो जाता है, ये कैनाल सब में हम भरते हैं, बट कुछ वाटर ग्राउंड के अंदर चला जाता है और वो ग्राउंड वाटर भी हम यूज़ करते हैं. कैसे? वी यूज़ ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड हैंड पम्प्स. इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. सी, कैनाल और डैम ह्यूमंस ने बनाया ताकि वाटर को स्टोर कर सके, हम पूरे साल वाटर को यूज़ कर सके, क्योंकि पूरे साल हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है ना. और जो वाटर, रेन वाटर ग्राउंड में जाता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. तो ग्राउंड वाटर से हम वाटर कैसे लेते हैं? डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं इसे बाय डिगिंग वेल एंड डिगिंग हैंड पम्प्स, इन दोनों के मदद से हम वाटर यूज़ करते हैं. ओके, मैं हैंड पंप और वॉल कैसे रहते हैं मैं आपको दिखा दूंगी. ओके, सो नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर, कि हम घर में कैसे स्टोर करते हैं वाटर. रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट्स. दिस वाटर कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स, क्लीन कार्स, क्लीन फ्लोर्स एंड सो ऑन. वाटर मस्ट ऑलवेज बी स्टोर्ड इन कंटेनर्स विथ प्रॉपर लिड्स. जब भी हम ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करते हैं हमारे घर में, उसके ऊपर लिड बंद करके रखना है, ताकि आपको पता है ना एयर में डस्ट रहता है, जर्म्स रहता है, तो सारे डस्ट एंड जर्म्स हमारे पीने के पानी में आके बैठ जाएगा. ये टैंक है, ये बकेट है, ये ड्रम है, तो आप देखे होंगे आपके घर में, इसमें हम पानी जमा करते हैं, उसको सिंटेक्स बोलते हैं. ओके, तो रेन वाटर कहाँ फिल करता है वाटर? रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में. ओके, ऑल्सो रेन वाटर हम कहाँ जमा करते हैं? कैनाल और डैम्स. क्या ये पॉसिबल है इतना पानी हम घर में स्टोर करते हैं? नो, क्योंकि हमारे घर में कैसे आता है पानी? टैप से आता है, तो हम टैप से लेके यहाँ पे हम जमा करते हैं डेली यूज़ के लिए, टैंक में, बकेट में और ड्रम में. ओके, सो रेन वाटर हम कलेक्ट कर सकते हैं. जब भी रेन होती है तो हम रेन वाटर वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसको हम रेन वाटर कलेक्ट करके प्लांट्स को, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, क्लॉथ्स वॉश करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. वो डायरेक्ट हम पी नहीं सकते, बट उनका यूज़ हम कर सकते हैं. ओके, सो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ अभी डैम, वेल, कैनाल वगैरह कैसे दिखता है. ओके, तो हमने जाना ये फेमस रिवर्स हमने जाना. ओके, इंडस रिवर, यमुना, ब्रह्मपुत्रा,
गंगा, ओके, दिस आर ऑल रिवर्स, ओके। सो आज अभी मैं बोलूँगी कि समटाइम्स वी बिल्ड डैम्स एंड कैनाल्स टू यूज़ रिवर वाटर, ओके। मैं डैम और कैनाल दिखाती हूँ आपको। सी, पहले हम डैम से शुरू करेंगे। दिस इज डैम। आपको पता है यहाँ मोरबी में भी एक डैम है। कौन सा डैम है बच्चों? यस, मोरबी में कौन सा डैम है? मच्छू डैम, है ना। आप सब ने देखा है ना मच्छू डैम, ओके। सो डैम ऐसे दिखते हैं। तो रेन वाटर कहाँ फिल करते हैं हम लोग? डैम और कैनाल्स में। दिस इज ऑल्सो डैम। मैं कुछ फेमस डैम्स आपको बताऊंगी। ये देखिए फेमस डैम जो है, मैं 4 ही बता रही हूँ। फर्स्ट वन है टेहरी डैम जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट लखवर डैम, मतलब उत्तराखंड में है वो भी। और इदुक्की आर्च डैम ये केरला में है। और भाखरा डैम ये हिमाचल प्रदेश में है, ओके। सो ये सारे डैम कहाँ पे हैं? कुछ फेमस डैम्स है, कुछ उत्तराखंड में हैं, कुछ केरला में हैं और हिमाचल प्रदेश में है। ऑल स्टेट में है। आपके यहाँ भी है ना डैम, एक मच्छू डैम है मोरबी में, है ना। पूरे गुजरात में तो एक और डैम होगा फेमस डैम्स। यहाँ पे देखिए टेहरी डैम उत्तराखंड में है, हीराकुद डैम ओडिशा में है। ये फेमस डैम्स, ओके। सो भाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुना सागर डैम आंध्र प्रदेश में है। ये देखिए आपका आ गया ना गुजरात। गुजरात कहाँ? गुजरात में कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। फेमस डैम के बारे में बता रही हूँ मैं ये। और तुंगभद्रा डैम ये मेरे प्लेस पे है। सो आई एम फ्रॉम कर्नाटका। सो तुंगभद्रा डैम हमारे कर्नाटक में है ना। सो कितने फेमस डैम से। एक रिहांद डैम है वो उत्तर प्रदेश में है ना। देखिए सब स्टेट में एक एक फेमस डैम्स है, ओके। सो आपके गुजरात में कौन सा डैम है? दिस वन, सरदार सरोवर डैम, ओके। सो दीज आर ऑल फेमस डैम्स, ओके। सो नेक्स्ट हमने जाना था सम वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड, ओके। सो ग्राउंड से हम कैसे निकालते हैं? फ्रॉम डिगिंग वेल्स एंड फ्रॉम हैंड पंप्स। फ्रॉम डिगिंग वेल्स एंड हैंड पंप से हम यूज़ करते हैं वाटर, ओके। सो दिस इज़ वेल, वी कॉल वेल। अभी आप कोई किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा वेल कैसे दिखता है, ओके। सो ये कैसे करते हैं हम? ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए बाय डिगिंग वेल एंड हैंड पंप। ये आपको दिख रहा है, इसको हैंड पंप बोलते हैं। ये देखिए कहीं आप गांव जाते हैं तो आपने देखा होगा हैंड पंप्स कैसे रहते हैं, okay. So these are hand pumps that we get water by digging wells and hand pumps. Clear? देखिए हैंड पंप ऐसे ही रहते नहीं बोल सकते, कुछ भी ऐसे भी रहते हैं, ओके। आप खेत में वगैरह देख सकते हो वहाँ पे हैंड पंप्स रहता है, ओके। तो मैं कैनाल के बारे में बताना भूल गई। ये देखिए एक कैनाल है। क्या है ये? कैनाल। तो कैनाल और डैम ने किसने बनाया है? कैनाल और डैम हम ह्यूमंस ने बनाया ताकि हम वाटर को यूज़ कर सके, उसको स्टोर कर सके, ताकि हम साल भर यूज़ कर सके, क्योंकि साल भर तो बारिश नहीं होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, ओके। तो ये देखिए एक कैनाल दिख रहा है खेत के पास, ओके। तो कैनाल ऐसे बिल्ड किया जाता है, यहाँ पे बिल्ड किया जाता है ताकि बीच में वाटर स्टोर कर सके, ओके। जब भी आप घूमने जाते हो कहीं पे भी आपको बीच में कैनाल मिला होगा तो आप देख सकते हो। ज़्यादातर कैनाल्स जहाँ खेत रहती है वहीं बनती है ना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया, कल हम पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको गूगल में से सर्च करके 5 फेमस
रिवर्स के बारे में लिखना है। 5 फेमस रिवर्स एंड 5 फेमस डैम्स, मीन्स आपको 10 लिखना है। 5 फेमस रिवर्स एंड 5 फेमस डैम्स इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में, बाहर के नहीं। ओके, तो ये आप सर्च करके खुद लिखेंगे, आपके पेरेंट्स का हेल्प ले लीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। नहीं तो मेरे वीडियो में मैंने दिखाया ही है फेमस नदियाँ और फेमस डैम्स, आप उसको पॉज करके भी लिख सकते हो। सो टुडे दिस इज योर होमवर्क। और टेक्स्ट बुक में जो शुरुआत हुआ है चैप्टर 11 जो एक्टिविटी है वो आपको लिखना है, पेज नंबर 101। ओके, आप कितना वाटर यूज़ करते हैं वो आज का होमवर्क है। और 4 नंबर नोटबुक में 5 फेमस रिवर्स एंड 5 फेमस डैम्स का नेम आपको लिखना है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। ओके, सो बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।